Find units of rate constants. Friends, we know that the rate of reaction can be given by this equation, that is minus dr upon dt, because with respect to time the concentration of reactant, that is concentration of reactant, always decreases. So we'll express rate of reaction by disappearance of reactant as minus dr upon dt. And what is rate law? For a reaction, that is reactant gives product, we can define rate law as expression of concentration of reactant, that is rate constant into concentration of reactant, that is R. So we can express rate of reaction by disappearance of reactant as well. And if we'll represent the rate of reaction by with reference to concentration of reactant, that is known as rate law, or it is also known as rate expression, or it is also known as rate equation. So now friends, in this lecture we are going to find the units of K, that is rate constant. So from this equation, if we'll make subject K, if we'll make subject that is K, then what will be K? K is equal to minus dr upon dt and upon concentration of R. So upon concentration of R. So friends, K is equal to minus dr means concentration of reactant, that is concentration, upon dt means time, and R, they both will multiply. So here also concentration of reactant raised to n for nth order reaction. Now friends, we must need to remember this equation of rate constant, that is K is equal to concentration upon time into concentration raised to power n for nth order reaction. And by putting different values 0, 1, 2 and 3, we can find the units of rate constant K. Now first, for 0 order reaction, in this equation of K, we'll write concentration upon time into concentration to the power 0 because of 0 order reaction. So concentration raised to power 0 means it is 1. So now we can say that K is equal to concentration upon time in second, concentration raised to 0 means 1. Now friends, what is concentration? Concentration means mole per liter. So in place of concentration, we'll write mole per liter, capital L. So for 0 order reaction, the unit of rate constant K is mole into liter inverse second inverse. I hope it is clear to all of you. Now, why we need to remember the unit of rate constant K? Because in any example of sums or in any MCQ, there is a value of K given. रेट कांस्टेंट का वैल्यू बेटा यहाँ पे आपको दिया होगा और रेट कांस्टेंट का वैल्यू होगा उसके पीछे उसका यूनिट लिखा होगा. तो यूनिट के हिसाब से आपको पहचानना है कि कौन सा ऑर्डर है रिएक्शन का, इसलिए हमें यहाँ पे के का यूनिट जानना बड़ा ज़रूरी है. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे ज़ीरो की जगह अगर मुझे लिखना है बेटा फर्स्ट ऑर्डर, इफ़ आई नीड टू राइट फर्स्ट ऑर्डर, कम ऑन, अगर मुझे यहाँ पे लिखना है फर्स्ट ऑर्डर तो क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे जो ज़ीरो है
उसकी जगह मैं 1 लिख दूं बेटा, यहाँ पे इतना करेक्शन करेंगे। सो कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पे क्या बाकी रहेगा बेटा, व्हाट इज लेफ्ट, K इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, कम ऑन, टाइम इन सेकेंड, सो विल राइट सेकेंड इनवर्स। सो अगर कहीं पे रेट कांस्टेंट K का वैल्यू है और लिखा है उसका यूनिट सेकेंड इनवर्स, मतलब उसका ऑर्डर है फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एंड फ्रेंड्स, नाउ फॉर सेकेंड ऑर्डर, अगर हमारे पास यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर के लिए यहाँ पे मुझे 2 लिखना पड़ेगा। और अगर बेटा मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, देन अगर मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, कम ऑन, इफ आई एम राइटिंग 2 ओवर हियर, तो ये कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1 है, तो ऐसे हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1, ये कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर है 2 उसको ऊपर लाएंगे तो -2 हो गया, अपॉन टाइम आपको पता है सेकेंड में है, तो यहाँ पे 1 - 2 जो है दैट इज -1। सो यहाँ पे 1 - 2 -1 हो गया है, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन -1 और अपॉन सेकेंड। नाउ वी नो दैट फ्रेंड्स, कॉन्सेंट्रेशन -1 मीन्स कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट तो आपको पता ही है, मोल पर लीटर। सो राइट मोल इनवर्स अपॉन लीटर, और लीटर को अगर हम डोमिनेंट में लाएंगे तो ये लीटर रेज टू 1 हो जाएगा, और सेकेंड क्या हो गया, सेकेंड इनवर्स। तो अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे बेटा यूनिट होगा मोल इनवर्स इनटू लीटर इनटू सेकेंड इनवर्स। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये जो है बेटा ये बात हो गई। यहाँ पे मैं टाइटल फर्स्ट ऑर्डर जो था उसको मैं सेकेंड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2 लिखा है, तो ये पूरा जो थियरी यहाँ पे लिखा है आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए है, ठीक है बेटा। नाउ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए ऐसे हम लिख सकते हैं, और अगर मुझे यहाँ पे लिखना है nth ऑर्डर के लिए, तो nth ऑर्डर के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, nth ऑर्डर के लिए जैसे यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे थे तो यहाँ पे n कर देंगे फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे K का एक्सप्रेशन हो जाएगा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ये 1 है और n है, तो 1 - n अपॉन सेकेंड। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बेटा मोल, कम ऑन, मोल पर लीटर रेज टू 1 - n into second inverse. This is for nth order reaction. Is it okay friends? I hope ये आपको समझ में आ गया बेटा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सम्स एग्जाम्पल्स जो हैं, है ना, और MCQ सॉल्व करने के लिए।